அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி अடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. कुछ अनिवार्य कामों की वजह से 3 दिनों से आपसे मिल नहीं पाया. कुछ ज़रूरी काम था, अनिवार्य काम था, बाहर जाना पड़ा 3 दिनों के लिए, इसलिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया. बुरा मत मानिएगा. अभी हर वाक्य में अनेक पद होते हैं, उन्हें शब्द भी कहते हैं. हर शब्द का अपना अलग महत्व होता है. उदाहरण के लिए आपके घर में आपके परिवार का ग्रुप फोटो है, टंगा हुआ है दीवार पर. जब मैं आपके घर आता हूँ तो उसे देखता हूँ और पूछता हूँ कि ये कौन कौन है. नीचे बैठने वाले कौन हैं, कुर्सी पर बैठने वाले कौन हैं, दाएं से बाएं कौन हैं और खड़े रहने वाले कौन हैं. तो आप क्या करते हैं, हर एक का परिचय देते हैं. ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे दादी जी हैं, ये हमारे भाई हैं, ये मेरी भाभी है, ये मेरे भैया हैं, ये मेरा छोटा भाई है. इस प्रकार आप उन लोगों का परिचय देते हैं ना. उसी प्रकार वाक्य में अनेक पद होते हैं, हर पद का अपना अलग परिचय होता है. उस परिचय के बारे में आने वाली एपिसोड में हम विचार करेंगे. अब एक विशेष बात उसी पद परिचय के बारे में. पद परिचय का हर पद का अलग विशिष्ट परिचय होता है, लेकिन कुछ प्रयोगों के कारण, कुछ समसामयिक वाक्य भेद के कारण उसमें परिवर्तन हो जाता है. किसमें? परिचय में. वो कैसे, ये जरा विशिष्ट पाठ है. विशिष्ट पाठ को बताने के वास्ते ही मैंने आज ये शीर्षक चुना है. इसलिए विशिष्टता, प्रयोग की विशिष्टता और उसके कारण होने वाले पद परिचय में भेद और अंतर. ஒரு வாக்கியத்துக்கு நிறைய சொற்கள் உண்டு. ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் ஒவ்வொரு மகத்துவம் உண்டு. உதாரணமாக நம்ம வீட்டில் நம்முடைய ஃபேமிலி ஃபோட்டோ இருக்கும், குரூப் ஃபோட்டோ இருக்கும். அதில் உள்ள மெம்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒவ்வொருக்கும் ஒரு அறிமுகம் உண்டு. இவர் தான் தாத்தா, இவர் தான் பாட்டி, இவர் தான் பெரியப்பா, இவங்க தான் பெரியம்மா, இவங்க தான் அண்ணி, இவங்க தான் அண்ணன், இவங்க தான் தம்பி. இப்படி ஒவ்வொரு அறிமுகம் உண்டுல்லவா. அதே போலத்தான் வாக்கியத்திலே நிறைய சொற்கள் இருந்தாலும் கூட ஒவ்வொரு சொல்லுக்கு ஒரு அடிப்படை அறிமுகம் உண்டு, முக்கியத்துவம் உண்டு. அதை நாம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை தெரிந்து கொண்டு அதை நாம் தெரிந்து கொண்டால் நாம் இலக்கணத்தை முழுமையாக அறிந்து கொள்வதற்கு சமம். எவரொருவர் இந்த பதப்பரிசை என்ற அந்த பகுதியை பிழையில்லாமல் நிறைவு செய்கிறாரோ அவருக்கு இலக்கண அறிவு நன்கு உள்ளது என்று பொருள். கிராமட்டிக்கல் நாலேஜ் மிக அதிகமாக உள்ளது என்று பொருள். ஆகவே இதை நாம் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது, மிக மிக முக்கியமானது. அப்படிப்பட்ட அந்த பதப்பரிசை என்ற பாகத்திலே சில நாம் பயன்படுத்துகின்ற முறையை பொறுத்து அதற்கு அடிப்படையான உள்ள அந்த பரிச்சை, அந்த அறிமுகம் என்பது சற்று மாறுபடும். அந்த மாறுபட்ட தன்மைகள் என்ன என்பதை பற்றித்தான்
இன்றைய பதிவில் நான் தங்களுக்கு கூற இருக்கின்றேன். என்றால் சிறப்பு பதிவுகளை தருவது என்னுடைய வாடிக்கை. ஆகவே அந்த சிறப்பான பதிவுகளை தங்களுக்கு கொடுத்து உங்களை மேலும் மேலும் நல்ல ஞானம் உள்ளவர்களாக ஆக்குவதே என்னுடைய இலக்கு என்ற அடிப்படையில் இன்றைய பதிவை நான் தொடக்குகின்றேன். முதலாவதாக ஓ பாஜார் ஜா ராய், ஓ பாஜார் ஜா ராய், அவன் கடைவீதிக்கு போய்கொண்டிருக்கிறான். ஆக்சுவலாக ஓ என்பது சர்வனாம், அதாவது ப்ரொனவுன். ஆங்கில பேசுவார்கள் ப்ரொனவுன் என்பார்கள். தமிழில் இதை வந்து பிரதி பேச்சுகள் என்பார்கள். அதே ஓ ஜா ராய், இங்கே ஓ என்பது கொய் ஹே, யாரோ ஒருத்தர் இருக்கான் இல்லையா, பேர் கிடையாது. பேர் இருந்தால் அவன் சஞ்சா ஆகிடுவான், பேர் இல்லாதனால அவன் சர்வனாம். சரி, அதே ஓ லடுக்கி பढ़ रही है, அந்த சிறுமி படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். இங்கே ஓ என்ற வார்த்தையானது லடுக்கியை ஒட்டு ஒத்து வருவதாலே, உதாரணமாக மீட்டே பல், அச்சா லடுக்கா, ஆக லடுக்காவை ஒட்டி வருவதால் அச்சா விசேஷன் அட்ஜெக்டிவ். அதுபோல் இங்கே லடுக்கிங்கிறது சஞ்சா, அதை ஒட்டி வர்றதுனால ஓ லடுக்கி. இங்கே அதே ஓ என்பது இங்கே வந்து என்ன வருது, விசேஷன் போட்டாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है. அதே ஓ என்ற வார்த்தை தான் மேல் பதிவிலே வந்து அது சர்வநாம் என்றும், இரண்டாவது பதிவிலே அது இடம் மாறி காரணத்தினாலே அது சார்வநாமிக் விசேஷன். மூன்றாவது वो लड़की पढ़ रही है. சரி, அடுத்ததாக आप बैठ सकते हैं, आप बैठ सकते हैं. यहाँ पर आप कौन है, कोई है, कोई महाजन है, कोई अध्यापक है, कोई भी है, कोई महाजन है, तो उनमें आप, उसके बदले आपका शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर सर्वनाम है. आप यहाँ बैठ सकते हैं, आप ये सर्वनाम है, अर्थात प्रतिपेचुल. और दूसरा क्या है, मैं ये काम आप करता हूँ, मैं ये काम आप करता हूँ, நான் இந்த வேலையை நானே செய்கிறேன், தானே செய்கிறேன். यहाँ पर आप का मतलब सर्वनाम है, लेकिन उसका प्लेस दूसरा होने से यहाँ आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम. निज का मतलब है ओन. मैं अपना काम आप करता हूँ, ओन. ओन कुकिंग சொன்னாங்க பா, ओन कुकिंग நானே சமையல் பண்ணுறேன், ओन वाशिंग நானே துவைக்கிறேன், ओन डूइंग नान से रहे. यहाँ पर आप का मतलब पहले वाक्य में आप सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरे वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम है. तीसरा, प्रेमचंद देशभक्त थे, आप कहानीकार भी थे. इतना और அறிவுப்படுத்துகிறோம். प्रेमचंद देशभक्त थे, आप कहानीकार भी थे. प्रेमचंद தேசபக்தராக இருந்தார், கதையாசிரியராகவும் இருந்தார். இங்கே ஆப் என்பது நீங்கள் அல்ல, அவர். அதாவது थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. यहाँ आप शब्द का तीन स्थान भेद के अनुसार तीन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है. पहले वाक्य में आप सर्वनाम, दूसरे वाक्य में आप निजवाचक सर्वनाम, तीसरे वाक्य में आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. समझिए ना. चौथा, जो, जो पुस्तक राम की है, जो मैं कल लाया था. वो पुस्तक राम की है, जो मैं कल लाया था. அது சரவணம். இங்கே சரவணம், அது நான் நேற்று வாங்கி வந்தேன், கொண்டு வந்தேன். यहाँ पर जो, यहाँ पर सर्वनाम हो गया. और जो भी दुनिया में आया उसे जाना ही है, जो भी दुनिया में आया उसे जाना ही है. यहाँ पर जो का मतलब क्या, कोई आदमी है, तो आदमी को इंगित करता है जो शब्द है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द विशेषण है. जो शब्द
विशेषण। जो भी दुनिया में आया उसे जाना ही है। எவன் இந்த உலகத்துக்கு வருகிறானோ அவன் போகத்தான் வேண்டும். இரவல் தந்தவன் கேட்கின்றான், அது இல்லை என்றால் அவன் விடுவானா? உறவை சொல்லி அழுவதனாலே உயிரை மீண்டும் தருவான் என்று பாடிருப்பார் कवियरसर। आगे जो यहाँ दुनिया में आया उसे जाना ही है। यहाँ पर जो का मतलब ये यहाँ विशेषण है। जो के सामने क्या है? जो आदमी, जो लड़की या जो स्त्री, जो महिला, जो नर नारी, तो वो नर नारी का जो यहाँ पर विशेषण हो गया। यहाँ पर जो इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और जो घड़ी देखी तो 5 बज चुके थे। जो घड़ी देखी तो 5 बज चुके थे। देखी क्या देखी? घड़ी देखी। देखी क्रिया है। यहाँ पर ये 5 बजे मतलब इसको इंगित करता है, क्रिया को इंगित करता है। सो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है। जो घड़ी देखी तो 5 बज चुके थे। यहाँ पर क्रिया विशेषण है। यहाँ पर जो पहले वाक्य में सर्वनाम है, दूसरे वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तीसरे वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। घड़ी बज चुके थे, कितनी घड़ी? जो 3 घड़ी। यहाँ पर जो इसको इंगित करता है क्रिया को। सो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण है। और जो भी दुनिया में आया उसे जाना ही है। यहाँ पर जो किसको इंगित करता है? किसी आदमी को या मनुष्य को या मानव को। सो यहाँ पर संज्ञा को इंगित करता है, इसलिए जो संज्ञा क्रिया विशेषण है। और पहला जो वो पुस्तक लाया जो राम की है, जो मैं कल लाया था, यहाँ पर सर्वनाम है। और चौथा कुछ 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 का परिचय। कुछ बाहर जा सकते हैं। सिलर बढ़िए पगला। यहाँ कुछ का मतलब क्या है? कुछ क्या बोलता है? कोई किसी आदमी को या कुछ लोगों को इंगित करता है, इशारा करता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा है। जो का यहाँ पर कुछ का मतलब संज्ञा है, लेकिन कुछ का मतलब एक्चुअली क्या है? वो विशेषण है। देखिए, लड़की आपकी जेब में कुछ है, आपकी जेब में कुछ है, ये सर्वनाम समथिंग दैट। यहाँ पर कुछ का मतलब है सर्वनाम பிரதிபெயர். உங்களுடைய பாக்கெட்டில் சம்திங் இஸ் தேர், ஏதோ இருக்கிறது. அப்போ ஏதோ சொல்லும்போது यहाँ पर विशेषण है। அடுத்தது खड़े क्यों हो, कुछ दूर तो चले जाओ। खड़े क्यों हो, कुछ दूर तो चले जाओ। हाँ, चलकर आओ, चलो और आओ। यहाँ पर जाना, जाने को इंगित करता है कुछ, इसलिए यहाँ पर कुछ का क्या होता है? विशेषण। क्यों खड़े क्यों हो, कुछ दूर तो चल के आओ, चलो। यहाँ पर क्रिया विशेषण है। चलना क्रिया का इंगित करता है, इसलिए यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषण है। और पांचवा कम। जितनी इच्छा थी उससे कम ही मिला है। நான் எவ்வளவு எதிர்பார்த்தேனோ அதை விட குறைவாகத்தான் கிடைத்திருக்கிறது. சரி, இது கிடைத்திருக்கிறது, இது கிடைத்திருக்கிறது ஒரு பொருள் தானே, பணமோ அது ஏதோ ஒரு உதவியோ ஏதோ ஒன்று. அப்போது பணம், பொருள், உதவியெல்லாம் அது எதை காட்டுகிறது? பெயர் சொல்லி काटகிறது। संज्ञा को इंगित करता है। सो इसलिए यहाँ पर कम संज्ञा हो गया है। जितनी इच्छा थी उससे कम ही मिला है। इस वाक्य में कम का परिचय क्या है? संज्ञा है। और कम खाना क्यों बनाया है? சாப்பாடு ஏன் குறைவாக சமைத்திருக்கிறீர்கள்? கம் கானா क्यों बनाए? சாப்பாடு
குறைவாக. அந்த குறைவான வார்த்தை எதை குறிக்கிறது? சாப்பாட்டை குறிக்கிறது. बस खाना என்பது இங்கே संज्ञा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं. यहाँ पर कम विशेषण, अगर से कम ना करता है ध्यान दे, कम यहाँ पर विशेषण है. कम खाना क्यों बनाया है? उसके बाद कम बोलना अच्छा होता है. कम बोलना अच्छा होता है. குறைவாக பேசுவது நன்மை பயக்கும். பேசுவது இது பேசுவது குறைவாக பேசுவது. பேசுவது बोलना, बोलना क्या है? यहाँ पर संज्ञा नहीं है, वो विशेषण है. इसलिए यहाँ पर कम का परिचय क्या है? क्रिया विशेषण है. कम बोलना अच्छा होता है. यहाँ पर कम क्या बताता है? क्रिया विशेषण है. पहले वाक्य में कम सर्वनाम है, दूसरे में कम विशेषण है, तीसरे में कम क्रिया विशेषण है. इसलिए एक ही शब्द उस प्रयोग की विशेषता के अनुसार उसका परिचय बदलता है. बस परिचय बदलता है और नाम भी बदलता है. इसका हमें अभ्यस्त कर लेना ज़रूरी है. अभ्यस्त कर लीजिए. मुझसे कई लोगों ने पूछा, जी इस प्रकार के वाक्य आते हैं, उसको किस प्रकार पहचानें? इसलिए प्रयोग के अनुसार जिस मतलब से हम उसका प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के अनुसार उन वाक्यों का परिचय, उन शब्दों का परिचय हम पा सकते हैं. इसलिए इस पर ध्यान देना सबसे जरूरी है. दोबारा एक बार, वो बाजार जा रहा है. यहाँ पर वो कैरेक्टर सर्वनाम प्रतिपक्षल. यहाँ पर वो सर्वनाम है. दूसरा, वो लड़की पढ़ रही है. वो लड़की पढ़ रही है. यहाँ पर वो लड़की की ओर इशारा करता है, लड़की की ओर इशारा करता है, इसलिए वो विशेषण है. उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण है. इसीलिए कि सर्वनाम ही यहाँ पर विशेषण के रूप में आया है, इसलिए उसका नाम है सार्वनामिक विशेषण. और दूसरा, आप भी सर्वनाम है. आप बैठ सकते हैं, डायरेक्टली सर्वनाम है. நீங்கள் அமரலாம், आप बैठ सकते हैं. और मैं ये काम आप करता हूँ, दिवाली नाने सीखरेन. यहाँ पर आप सर्वनाम है, लेकिन उसका मतलब क्या है? स्वयं का भी मतलब अर्थ में आता है, हिमसेल्फ के अर्थ में आता है. इसलिए यहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम है. और तीसरा, प्रेमचंद देशभक्त थे, आप कहानीकार थे. यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रेमचंद का परिचित कराते हैं. तो प्रेमचंद कौन है? वो थर्ड पर्सन है. प्रेमचंद थर्ड पर्सन है. इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. मैं और हम को उत्तम पुरुष कहते हैं. तुम, आप और तू को मध्यम पुरुष कहते हैं. वो, ये, वे, ये, क्या, ये सब अन्य पुरुष कहते हैं. यहाँ पर क्या हो गया? आप काम करते. यहाँ पर आप, यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம், அவரை பற்றி இல்லை. இப்போ थर्ड पर्सन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम. और जो पुस्तक पर राम की है, जो मैं कल आया था. और ராமனுடைய புத்தகத்தை நான் கொண்டு வந்தேன். यहाँ पर जो पुस्तक वो राम की है, जो मैंने आया था, यहाँ पर सर्वनाम है. और जो भी दुनिया में आया उसे जाना ही पड़ेगा. जो भी दुनिया में आया उसे जाना पड़ेगा. यहाँ पर सर्वनाम है. जो किसी और आदमी को या औरत को की ओर इशारा करता है, इसलिए ये सर्वनाम. और जो घड़ी देखी तो 5 बज चुके थे. கடியாரத்தை பார்த்தபொழுது 5 அடித்தது. 5 அடித்தது, இது அடித்தது கடிகாரம். यहाँ पर जो घड़ी, यहाँ पर घड़ी, जो घड़ी
क्रिया विशेषण एडवर्ब। और कुछ बाहर जा सकते हैं, कुछ वहाँ बहुत सारे लोग हैं, उससे हम क्या कहते हैं, कुछ बाहर जा सकते हैं। यहाँ कुछ का मतलब है कुछ लोग, क्या पर संज्ञा है। और आपकी जेब में कुछ है, क्या है सर्वनाम है। और क्यों, खड़े क्यों हो, कुछ दूर तो चले जाओ, ये चले जाओ कुछ दूर, यहाँ पर क्रिया की ओर वो इंगित करता है। सो यहाँ पर जो क्रिया कुछ क्रिया और कम, जितनी इच्छा थी कम ही मिलाए। एक्चुअली कम क्या होता है, विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ भिन्न है, क्योंकि जितनी इच्छा थी उससे कम ही मिलाए। जितना हमने प्रतीक्षा की थी, तो मतलब सब बड़ी समथिंग इज दैट, இது ஒரு பொருள் தானே, अब பொருள் என்பது संज्ञा, इसलिए यहाँ पर कम किसका सूचक है, किसी संज्ञा का सूचक है, इसलिए यहाँ पर कम संज्ञा है। और कम खाना क्यों बना है, खाना कम खाना अच्छा है, குறைவாக சாப்பிடுவது நல்லது। कम खाना यहाँ पर विशेषण है। और कम खाना क्यों बनाया है, कम बोलना अच्छा है, कम बोलना अच्छा होता है, अच्छा है। குறைவாக பேசுவது நல்லது, बोलना कम किसकी ओर इंगित करता है, इशारा करता है, बोलना की ओर, तो बोलना क्रिया है। सो यहाँ पर कम क्रिया विशेषण है। इस प्रकार प्रयोग के अनुसार वो बदलता है। एक और में बहुत टाइम नहीं था, सीधा सीधा साधा, आप जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसका मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक अर्थ है सीधों को कौन पूछता है, सीधों को कौन पूछता है। एक ऑटो में मैंने देखा, एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, கடன் வாங்கி காரிலே போகிறவனை உலகம் மதிக்கிறது, கடனே இல்லாமல் साइकिल போகிறவனை उलगम मदिकाது। ये कितना दार्शनिक तत्व है। बिना कर्ज लिए जो साइकिल में जाता है उसका कोई सम्मान नहीं है, और जो कर्ज लेकर वो गांव भर में उसका कर्ज है लेकिन वो कार में जाता है तो उसका सम्मान है। इस प्रकार यहाँ पर जो सीधा साधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसे कौन मानता है, उसे कौन पूछता है, उसका सम्मान कौन करता है। यहाँ पर सीधे का मतलब है संज्ञा, क्योंकि आदमी को इंगित करता है। और राम सीधा लड़का है, यहाँ पर लड़का सीधा, तो यहाँ पर सीधा क्या है, विशेषण है। सीधे बोलकर, सीधे बोलना अच्छा हो रहा है, सीधे आ जाओ, सीधे जाओ, इस रास्ते पर सीधे जाओ तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगा। यहाँ पर सीधा का मतलब है सेट, इसको क्या बोलता है, क्रिया की विशेषता बोलता है। सो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। सीधा एक प्रकार संज्ञा होता है, उसके बाद विशेषण होता है, उसके बाद क्रिया विशेषण भी होता है। वहाँ पर प्रयोग की भेद के अनुसार, प्रयोग की स्थिति के अनुसार शब्द परिचय में भेद होता है। इस भेद को आप अच्छी तरह जान लीजिएगा। इसी प्रकार क्योंकि ज़्यादा समझ लेने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं कुछ सिर्फ 5 वाक्य बने, 5 शब्द दिए हैं, लेकिन हर शब्द का 3-3 वाक्य दिए हैं, सो 15 वाक्य हो गया। इससे ज़्यादा अगर मैं दूँ तो आप ऊब जाएंगे, आपको समझ में भी आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसी प्रकार कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे
मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. இதே போல இன்னும் பல தலைப்புடன் புதிய தலைப்புடன் நாளை சந்திக்க வருகின்றேன். ஏனென்றால் இது போன்ற பதிவுகளை நெடுநேரம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் தங்களுக்கு போர் அடிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் புரிந்து கொள்ள கொஞ்சம் சில கடினமாக இருக்கும். ஆகவே குறைவாக தந்திருக்கிறேன். அந்த குறைவானதை நான் ஏற்கனவே சொல்வது போல மீண்டும் 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 திரும்ப 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 நீங்கள் கேட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள், போட்டு பார்த்து கொள்ளுங்கள். அது மூலமாக ஞானம் பெறுங்கள். ஆகவே எழுதி வைத்துக்கொண்டு மேலும் மேலும் கேட்டு வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் பார்ப்பதால் தெளிவுறுவீர்கள். அந்த தெளிவு உங்களுக்கு கிடைக்க என்பதற்காகவே நான் இன்றைக்கு குறைத்து கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த குறைப்பு என்பதை நீங்கள் குறையாக கருதாமல் நிறையாக கருதி கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு இதையே நீங்கள் தொடர்ந்து அதாவது பயிற்சி செய்ய நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கின்றேன். அப்துல் கலாம் சொல்லியிருக்கிறார், முயற்சியோடு முடியாவிட்டால் பயிற்சியோடு. அந்த அவருடைய பொன்மொழியை நீங்கள் கடைப்பிடித்து இந்தியிலே நல்ல நாலேஜ் பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அதுவே என்னுடைய எய்ம் ஆகும், உத்தேசியம். ஆகவே இத்தோடு நிறைவு செய்கின்ற நாளை வரைக்கும் தன்னிடம் வந்து விடைவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். आपका आर सुंदरराजन, तमिलनाडु. धन्यवाद. जय हिंद.